ایسا لگتا ہے کہ خداؤں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور خوبصورتی سے آراستہ کیا. تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ ہمارے قصر کے پیشکار جناب ہنیفر کو یہاں بلاؤ. اس نے یہ اپنے لباس کے نیچے چھپایا ہوا تھا. یہ یوزارسیف کی صنعت فروخت ہے بانو حضور. کسی شمول نامی شخص نے یوزارسیف کو بدست مالک فروخت کیا ہے. اسے تو ہمارے قصر کے خزانے میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ تمہارے پاس. جیسی آپ کی مرضی. بانو حضور، یوزارسیف آپ کے سپرد ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس کی بہتر طور پہ تربیت ہو، قصر میں زندگی گزارنے کے طور طریقے عمرہ کے ساتھ پیش آنے کے آداب سیکھے. امید ہے کہ ہمارے قصر کے لائق فائق پیشکار بطور احسن اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں گے. تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا یہ تعظیم کرنا عذر احترام ہے؟ یہ صحرا نشین چرواہا یہ بھی نہیں جانتا کہ جھکا کس لیے ہے، اور عام یہ امید رکھتی ہیں کہ اس کی یہ تعظیم عذر احترام ہو. اس لباس میں تو اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے. اس کی منہ پر اتنی تعریف مت کریں، مغرور ہو جائے گا. میرے ساتھ آؤ. یہ کمرہ جو دیکھ رہے ہو، یہ زلیخا اور پوتیفار کے نہایت ہی قریب اور عزیز ترین مہمانوں کے لیے مختص ہے. اس کمرے تک آنے کے لیے ان 7 دروازوں سے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں گزرنا پڑتا ہے. ان 7 دروازوں پر مضبوط قفل لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دروازے مقفل ہوں تو کسی کو اس کمرے میں آمد و رفت کی مجال نہیں. ان دروازوں کی چابی صرف بانو زلیخا کے پاس ہوتی ہے. اور یہ ہمارے قصر کا خوبصورت ترین منظر ہے، اور یہاں سے ہمارے مصر کے سب سے بڑے دریا نیل کا بخوبی نظارہ کیا جا سکتا ہے. اور اس طرف مغرب کی جانب شہر خموشاں نظر آ رہا ہے. میرے ساتھ آؤ. یہ بانو زلیخا کا مخصوص کمرہ ہے. وہ ایک مغرور اور متکبر اشرافزادی ہے. خیال رہے کبھی بھی ان کے حکم سے روگردانی مت کرنا. چلو. یہ جناب پوتیفار کی استراحت گاہ اور کتاب خانہ ہے. پوتیفار مصر کی دوسری بڑی شخصیت ہے، اور تمہیں سیکھنا چاہیے کہ ان کے اور دیگر اہم شخصیات کے روبرو بطور احترام کس طرح تونش بجا لانا ہے. اور وہ ہے سوفر جناب پوتیفار کا مخصوص خدمتگار اور کتابدار. چلیں. یہ جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے کھانا کھانے کا مخصوص کمرہ ہے.
مجھے یوسف کو نجات دلانی ہوگی. مجھے کچھ کرنا ہوگا. مجھے کچھ کرنا ہوگا. کیا یوسف کسی قید و بند یا زندان میں ہے جو اسے نجات دلاؤ گے؟ مگر پھر بھی وہ ایک غلام ہے. لیکن اس پرشکوہ قصر میں اس کا حلیہ غلاموں کا سا نہیں تھا. اگر کسی پرندے کا قفس خوبصورت ہو تو کیا وہ پرندہ اسیر نہیں ہے؟ میں اس وقت تک مصر کو ترک نہیں کروں گا جب تک کہ یوسف کو یعقوب نبی کے پاس نہ لے جاؤں. لیکن تم نے دیکھا کہ عزیز مصر اور ان کی ملکہ یوسف کو کس قدر چاہتے ہیں. لیکن یعقوب نبی جتنا نہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ یوسف کی جدائی کی آگ میں جل رہے ہوں گے. لیکن مالک، یوسف نے بتایا تھا کہ اس کا مصرانہ ارادہ خدا بندی کے تحت ہے. یہ میرا آخری تجارتی سفر تھا. تم جلد سے جلد مال تجارت فروخت کر کے بابل واپس لوٹ جاؤ. یہ خدمتگاروں اور غلاموں کا رہائشی حصہ ہے. ان میں سے کچھ تو قصر پوتیفار کے کاریگر ہیں اور کچھ یا تو قصر کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں یا کپاس اور نرسل کے کھیتوں میں کاشتکاری کرتے ہیں. ان میں سے اکثر مرد و خواتین اس وقت مصروف کار ہیں. ان میں سے ہر ایک کمرے میں ایک خاندان رہائش پذیر ہے. یہ لوگ اتنی مفلسی و بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ جناب پوتیفار ان پر کوئی توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ٹپس میں دیگر خدمتگار، غلام اور مزارع وغیرہ بنسبت ان کے کہیں بدتر حالت میں ہیں. ہم انہیں رہنے کے لیے مکان اور مناسب غذا فراہم کرتے ہیں اور ان کی اور ان کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا میں کبھی کبھی ان سے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ بانو زلیخا اور عالی جناب پوتیفار سے اجازت لے لیں. یہ غلام ہماریاں اٹھانے کے لیے مخصوص ہیں. چلو. یہاں پر نرسل سے کاغذ تیار کیا جاتا ہے. درود پر عالی جناب ہونی پر. نرسل کتابت کے کام آتا ہے. ہم تو کتابت کے لیے حیوانات کی کھال استعمال کرتے ہیں. یہ جانوروں کی کھال سے کہیں بہتر ہوتا ہے. تم لکھنا جانتے ہو؟ جس نے مجھے خلق کیا ہے اسی نے لکھنا بھی سکھایا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے. جو غلام لکھنا جانتا ہے وہ اس کے مالکوں کے لیے بڑی نعمت. کیا کہا تم نے؟ کس سے سیکھا ہے؟ اس مربی سے جو میرا مختار ہے. وہ تمام زبانیں جانتا ہے. یہ اچھی بات ہے. چلیں.
यहाँ कतान कपड़ा बुना जाता है। कतान वही कपड़ा है जो हम कमर के गिर्द बांधते हैं और इससे लिबास तैयार करते हैं। नफीस तरीन कतान जो यहाँ तैयार होती है वो शाही कतान के नाम से मारूफ है। ये कारखाना सिर्फ अहलियाने कसर के लिए कतान कपड़ा तैयार करता है। बानो जुलेखा वो मिस्री अशराफजादी हैं जिनके लिए इस कारखाने में निहायत नफीस और खूबसूरत कपड़ा तैयार किया जाता है। चलो ये कारखाना है सुफालगरी। दरूद पर आली जनाब होने पर। आब रसानी की चंद नालियां सवारी गुजरने की वजह से टूट गई, उन्हें तब्दील करना है। इस नाप का है ना जनाब? हाँ हाँ, इसी नाप का है। इनके तैयार होते ही तब्दील करा दूंगा। ठीक है। ये अनाज का गोदाम। बावर्ची खाने की जरूरत की तमाम अशियाए खुर्दनोश की निगहदारी यहां होती है। तुम्हारे हवास कहां हैं? ठीक से काम करो। याद रहे, आज के बाद जब तक तुम्हें बुलाया न जाए और कोई सवाल न किया जाए, जवाब नहीं दोगे। जुलेखा एक मुतकब्बिर खातून है और बसा औकात दरबारियों की तरह सख्त गिर और बेरहम भी हो जाया करती है। ये कसर का बावर्ची खाना है। यहाँ मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाएं तैयार की जाती हैं। खिदमतगारों और गुलामों के लिए अलग, कसर के मुंतज़मीन और मसूलीन के लिए अलग, और जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के लिए खाने का अलग एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं क्यों? क्या सबके लिए एक ही किस्म का खाना तैयार नहीं किया जा सकता? जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा गुलामों और खिदमतगारों के बराबर तो नहीं है ना? ये युजार शेख, आज से युजार शेख ग़िज़ा की तक़सीम में आपकी मदद करेगा। युजार शेख पढ़ना लिखना जानता है, चुनाचे उस फहरिस्त के तहत जो हम उसे देंगे, हर शोबे को उसकी तादाद के मुताबिक ग़िज़ा तक़सीम करेगा। देख रहे हो किस इश्तियाक से तुम्हें देख रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी खातिर यहां जमा हुए हैं। यहां क्या कर रहे हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करते? जाओ अपना काम करो, अपना काम करो। ये कसर का इबादत खाना है। पुतिफार और बानो जुलेखा और दीगर अहलियान कसर यहाँ इबादत करते हैं। हम अपने खुदाओं की यहाँ निगहदारी करते हैं। यानी आपके खुदा जाओ मकान के मोहताज हैं? तो जाहिर है धूप और बारिश में ज़ेर आसमान तो नहीं होना चाहिए ना?
درود بر جناب ہونے پر پیشکار اعلیٰ، عموماً قصر کے دورے کے لیے صبح کا وقت مخصوص ہے، آج خلاف معمول اس وقت کیسے؟ یزار شیف کو قصر دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ میں نے چاہا کہ وہ قصر اور اہلیان قصر سے آشنا ہو جائے۔ کیا ہو گیا؟ قصر سے کچھ جواہرات چوری ہو گئے ہیں۔ یہ قصر کے داخلی دربان ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ دونوں کو ہی نگہبانوں اور ساکنان قصر کی عبرت کے لیے تختہ دار پر چڑھا دو۔ اگر اقرار نہ کریں تو حتماً ایسا ہی کرو۔ میں نے بالکل چوری نہیں کی ہے، میں بے قصور ہوں۔ یقین کرو، اس طرح تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جناب ہنیفر، خداؤں کی قسم میرا کوئی قصور نہیں، سب جانتے ہیں میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ اصل میں جس روز چوری ہوئی وہ میری نگہبانی کا دن نہیں تھا، پتہ نہیں یہ مجھے کیوں پکڑ کر لائے ہیں۔ آخر کار تو ہمیں مجرم کا پتہ چل ہی جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ خود ہی اقرار کر لو اور مسئلے کو یہیں ختم کر دو۔ اس کا کہنا ہے کہ تم اس کا دھیان بٹتے ہی اس کی ماموریت کی جگہ پر داخل ہوئے تھے۔ میں اس کی ماموریت کی جگہ پر؟ یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ غلطی ہو گئی، میں مجبور تھا۔ اس طرح بتاؤں کہ چند لمحوں کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ یعنی اس قصر میں کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جس نے مجھے دیکھا ہو؟ نگہبان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کے دوران نہایت ہوشیار اور چوکنا رہے۔ تمہیں سونا نہیں چاہیے تھا۔ تم خطاکار ہو۔ تم نے ایک تو اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی اور دوسرا یہ کہ تمہارا کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن عالی جناب میں چور نہیں ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ مجھے افسوس ہے۔ نینیفر کپتا کو آزاد کر دو اور اس کو زندان میں ڈال دو۔ عالی جناب میں چور نہیں ہوں، خداؤں کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے، مجھ پر رحم کریں۔ تم پر خداؤں کی لعنت ہو نینیفر، تم پر خداؤں کا قہر ٹوٹے، انہیں حقیقت کیوں نہیں بتا دیتے؟ منہ بند کرو۔ عالی جناب میں چور نہیں ہوں، سچ کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی ہے۔ عالی جناب میں چور نہیں ہوں۔ میں چور کی شناخت کر سکتا ہوں۔ نہیں برخدا، یہ تمہارا کام نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ چور کی شناخت ہو؟ کیوں نہیں؟ تم کیسے چور کی شناخت کرو گے؟ میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے، وہ فیصلہ دینے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تمہیں یقین ہے؟ جی جناب حنیفر، آپ چاہیں تو آزما لیں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ چور کون ہے۔ بہتر ہوگا اعتراف کر لیں اور اپنے جرم کو مزید سنگین نہ کریں۔ اصل میں جس دن قصر سے جواہرات چوری ہوئے میں پیرے پر تھا ہی نہیں، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے چوری نہیں کی، میرے پاس گواہ بھی نہیں، لیکن میں نے نینیفر کو جواہرات کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ بے گناہ کون ہے میں جانتا ہوں، تم خوف میں مبتلا مت ہو، اور گناہگار کو بھی خوب پہچانتا ہوں، جلد یہ سب بھی اسے پہچان لیں گے۔ میں جناب حنیفر سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے ہی گناہگار کی نشاندہی کروں فوراً اس کی گردن اڑا دی جائے۔ مجھے بس اس کا پتہ چل جائے۔ رودامون تیار کھڑا ہے۔ میں اسے مہلت نہیں دوں گا، بس ایک اشارے کی دیر ہے۔ جناب رودامون، ان دونوں کو اس باغیچے کے سامنے میں 2 زانوں بٹھا دیں۔
इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। रुमाल लाओ। इनके हाथ बांधो। एक बार फिर चोर को मोहलत दी जाती है। अगर खुद एतराफ जुर्म कर ले तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर हमने उसकी निशानदेही कर दी तो जनाब रुदामून यहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। चोर ये है, अपनी तलवार निकाल ले। यही चोर है, इसकी गर्दन उड़ाते हैं। नहीं नहीं, मैं एतराफ करता हूँ कि चोरी मैंने की है। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनाब रुदामून। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी एतराफ कर लोगे। आफरीन युजार सेफ, आफरीन। ले जाओ इसे। आफरीन बरखुरदार, बहुत खूब। मुझे यकीन न था कि कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ युजार सिफ। अगर तुम ना होते तो मैं बेगुनाह मारा जाता। तुम पर खुदाओं की रहमत हो। तुम्हारी बेगुनाही साबित करना मकसूद ना होता तो नैनीफर को हरगिज शर्मिंदा ना होने देता। ये इतना भी मासूम नहीं। अगर दोबारा कभी अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती तो सख्त सजा के मुस्तहक करार पाओगे। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूब बेटा, अब चलें, मेरे साथ आओ। कितना ज़हीन और होशियार है। देखा किस तरह उससे उगलवाया है। खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है, कैसे इस बच्चे ने ये मसला हल कर दिया। वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी कि अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युजार सेफ की इस तरकीब ने सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस गरां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युजार सेफ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गदा नहीं ले जा सकता। युजार सेफ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखी गई मिकदार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से काम नहीं। युजार सेफ के कयाम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है। नहीं, गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ये बताओ युजार सेफ, तुम्हें वो कमरा पसंद है? शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाजत फरमाए तो मैं चाहूंगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और गुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कसर में गुलाम की मौजूदगी कसर के कवानीन के खिलाफ है और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा। जब मैं और खुदावंद कसर जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इज़हार ख्याल का कोई हक नहीं।
युजारशीफ मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहना। शुक्रगुजार हूँ। बेचारे मेरे बाबा, खुदा उन्हें सब्र दे। सुनो एक कनान के भेड़ियों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, खामोश क्यों हो? बाबा, क्या भेड़िए भी बातें करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन अगर खुदावंद चाहे तो मेरी बात का जवाब जरूर देंगे। देखो बेटा, देखो बेटा, आ गए। आखिर तुम लोगों ने अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? तुम बताते क्यों नहीं लावी? बाबा वो भेड़िए। झूठ बोलते हो। भेड़ियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें यूसुफ की कोई खबर नहीं। भेड़िए ने? बाबा जान, भेड़िए ने किस तरह इनकार किया? मैंने भी सुना है। भेड़िए ने बाबा से बातें की, बताया कि यूसुफ को हमने नहीं खाया है। इससे पहले कि देर हो जाए बता दो कि तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया है। अभी भी वक्त है। हमें खुद नहीं पता, बहुत ढूंढा। भेड़िए। भेड़ियों पर तोहमत मत लगाओ। जो कुछ किया है तुम भेड़िया सिफतों ने किया है। आओ तौबा कर लो और हकीकत बता दो। खुदा हर किसी को तौबा की तौफीक नहीं देता, बिलखुसूस उन लोगों को जिनके कुलूब पत्थर के हो जाएं। खुदा निगहबान मालिक, फिर मिलेंगे। खुदा निगहबान।
युजारसेफ को यहां लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं हूंगा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मां बनने की नेमत से महरूम रखूं। पहली बात तो ये है कि अब रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए चंद साल हुई है। क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिब औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाब पोतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है। मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूं, और इसी मोहब्बत के पेश नजर मैंने युजारसेफ को आपकी खिदमत में पेश किया था, क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसरत का बाइस होगी। कोई चीज आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरी खुशी का बाइस नहीं। युजारसेफ को भी चूंकि आपका हदिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साबे औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी युजारसेफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो जुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतीफार, आज युजारसेफ ने चोर की शिनाख्त के लिए जो चाल चली है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ युजारसेफ की फहम व फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे युजारसेफ ने नैनिफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो। मैंने खुद सुना, वो उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाने का इरादा रखते हैं। जुलेखा ने उसे बतौर फर्जंदे मुतमन्ना कबूल कर लिया? कहा तो कुछ नहीं, गालिबन मुत्तफिक हैं। ये कैसी अफवाहें हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं? मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ, यकीनन युजारसेफ के मुतालिक है। क्या युजारसेफ की फर्जंद मुतबन्नी वाली बात दुरुस्त है? अच्छा इंतखाब है ना? ये मिस्र के आईन और कानून और उसके रस्म रिवाज के बरखिलाफ है। युजारसेफ एक अजनबी है और अदना तबके से ताल्लुक रखता है, और आप जैसी अशराफ सादी से कोई मेल नहीं रखता। जब मेरा फर्जंद बन जाएगा तो वो भी नाम व मकाम व मर्तबे का हामिल हो जाएगा। और उसके आईन और ईमान का क्या करेंगी? क्या मालूम कि वो आमून का दुश्मन और आईन मिस्र का मुखालिफ नहीं है? अजीब बातें कर रही हैं। बच्चों का जहन कोरे कागज की मानंद होता है, जिस पर जो चाहे बासानी तहरीर किया जा सकता है। इस इरादे को अमली जामा पहनाने से बाज आ जाइए, ये बेहतर नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। आप भी बेहतर होगा मायूस कुन बातें करने के बजाय मेरी मदद करें। तो फिर मुझे हुज्जत तमाम कर लेने दीजिए। मैं आज माबद आमून के जादूगर के पास गई थी और उन्हें युजारसेफ के बारे में आगाह किया। आप जानती हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बच्चा जुलेखा का दुश्मन है और ये आपको इस जिंदगी से बेजार कर देगा और उन खुदाओं से मुतनफर कर देगा। जादूगर ने बताया, आप आखिरकार किसी दूसरे खुदा की परस्तिश करने लगेगी। ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? वो एक बच्चा है। बच्चे को मैं जैसे चाहूं तरबियत करके ढाल सकती हूँ, समझी? तो
कल से उसे तैयार करके मेरे पास लाना, समझी? तो मैं चाहती हूँ उसे मिस्री आदाब और रसूमात से आशना करूँ। इस काम में मेरी मदद करे। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ मानो। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन कल को ये मत कहिएगा कि कारी मामा ने बताया नहीं। मैं जनाब पुतिफार का खाना लेने आया हूँ। युजार साहब की अदम मौजूदगी में हम ये नहीं कर सकते। खाने की तकसीम के इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। उसने खूब अपनी जगह बनाई है। पुतिफार और जुलेखा उसे अपना फर्जंद मुतबन्ना बनाने का इरादा रखते हैं। रास्ता दें, एक तरफ हो जाए। कसर के तमाम अफराद की कुल तादाद की फहरिस्त युजार शेफ के पास है। हर शख्स और हर शोबे के लिए जितनी मिक़दार ये कहे ग़िज़ा दे दें। निगहबानों के लिए ग़िज़ा 5 अफराद की। अफराद। माबद के काहिनों की तादाद तो 5 है, 20 अफराद का हिस्सा क्यों? तो क्या माबद के खुदाओं को ग़िज़ा की जरूरत नहीं? तो क्या माबद के खुदा खाना भी खाते? नहीं, नहीं खाते। लेकिन क्या बंदों की ग़िज़ाओं को मुतबरक करने के लिए खुदाओं के हुजूर में हदिया नहीं करना चाहिए? और जब तमाम खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक कर देते हैं तो इसे कौन खाता है? वो जो ग़िज़ा मुतबर्रक कर देते हैं वो खुदाओं के माबद के काहिनों और खादिमों का हिस्सा हो जाती है। इस तरह तो हर काहिन दूसरों की बनिस्बत 4 गुना खाना खाता है। इसी वजह से काहिन ज्यादा मोटे ताजे हो जाते हैं। काहिन और उनसे वाबस्ता अफराद तो हर रोज खुदाओं की बरकत से मोटे ताजे होते जा रहे हैं, जबकि दीगर कारकुनान को हस्बे जरूरत ग़िज़ा भी मुयस्सर नहीं। और क्या अगर खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक ना भी करें तो क्या हो जाएगा? यकीनन वो हमारे मैदों में गड़बड़ मचा देगी। बस करो। अगर खादमी ने मोहब्बत से शर्म नहीं करते, कम से कम खुदाया ने मोहब्बत से तो कुछ हया करो। चलो। ये जादूगरनी अब गई है ताकि युजार सीफ के खिलाफ जहर उगले। यहाँ तो माबद के काहिनों की तादाद 5 लिखी हुई है, लिहाजा 5 अफराद से ज्यादा ग़िज़ा नहीं मिल सकती। ये तुम्हारा मसला नहीं है। हमने हमेशा 20 अफराद का हिस्सा लिया है। आज ये जितना कह रहे हैं इन्हें दे दो। जनाब हुनीफा इस मसले को खुद हल करेंगे। नाम पे खुदाओं के, पेट में काहिनों के। आज तक किसी ने भी उनकी इस धांधली पर एतराज नहीं किया था। आफरीन है बरखुरदार, आफरीन। एक वो थी नैनफर किप्ता की रसवाई और एक ये है काहिनों की रसवाई। देखा इस बच्चे ने किस तरह नैनफर किप्ता को जिंदान का रास्ता दिखाया। बड़ा ही निडर और ज़हीन बच्चा है जनाब हुनीफा। अच्छा, तो क्या हो रहा है युजार सीफ? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं आली जनाब। युजार सीफ का माबद के काहिनों से झगड़ा हो गया था।
ये उनकी इरादा तलबी के माने हो रहा था, कारी मामा भी इस तमाम माजरे की शाहिद है। मेरा ख्याल है कि कारी मामा और काहिनान इस बच्ची के खिलाफ कोई साजिश करेंगे। आली जनाब का खाना तैयार? जी आली जनाब। उठा कर ले चलो। तुम भी आओ युजार शेख। इनकी ग़िज़ा हर रोज की तरह इन्हें दो जब तक युजार शेख वापस लौटे। चलें। आप तो नहीं थे कि जो देखते कि लोग हम पर किस तरह हंस रहे थे। कारकुनाने कसर भी उसी का साथ दे रहे थे। यानी पोतीफार ने तकसीम ग़िज़ा की जिम्मेदारी एक बच्चे को सौंप दी है। होनीफर ने उसे जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है कि वो काफिर है और हमारे खुदाओं को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं पोतीफार और सुलेखा से बात करूंगा, परेशान मत होना। युजार सेफ, कहाँ हो तुम? यहाँ हो। नेमी साहबो, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम काफिर हो और हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी खुफू काहिन माबूद के खादिम बेंगिस से कह रहे थे कि अगर साबित हो गया कि तुम हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। बताया नहीं? क्या तुम काफिर हो? मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैं काफिर नहीं हूँ और खुदा की परस्तिश करता हूँ। किस खुदा की बात कर रहे हो? तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, सबका खुदा। ओह, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुम्हें पता है खुदा ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था। मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं खुद से बोल रहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। आ रहे हो? मिलकर खेलेंगे। हाँ, आता हूँ। काश आप देखती, कस्र के तमाम लोग उसके साथ मिलकर काहिनों का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बताओ, एक बच्चा किस तरह काहिनों की तहकीर और तज़हीक का बाइस बन सकता है? किनायतन कह रहा था, काहिन खुदा के नाम पर ग़िज़ा लेते हैं और खुद अपना पेट भरते हैं। मैं इस सिलसिले में उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना आमून की परस्तिश करता है और ना खुदाओं की। जनाबी पोतीफार बानो के मुंतज़िर हैं। ज़ोहानी का वक्त हो गया है। इस बच्चे से मोहतात रहें। अगर इसने अरबाब माबद को गुस्सा दिला दिया तो ये अपनी ही जान को खतरे में डाल देगा।